Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाते हैं। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू, धन्यवाद आपका। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi says India's G20 presidency is a big opportunity to focus on global good and welfare of the world. Wheat sowing under Rabi crop area coverage rises by over 14 lakh hectares this year. And foreign investors pump in nearly 32,000 crore rupees in Indian equities so far this month. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व की भलाई और विश्व कल्याण पर ध्यान देने का एक बहुत बड़ा अवसर है। रबी फसल की बुआई में गेहूं के बुआई क्षेत्र में 14 लाख हेक्टेयर से अधिक की हुई वृद्धि और विदेशी निवेशकों ने इस वर्ष अब तक भारतीय शेयर बाजारों में लगभग 32,000 करोड़ रुपए का किया निवेश। Prime Minister Narendra Modi today said India's upcoming G20 presidency is a big opportunity to focus on global good and welfare of the world. Addressing the nation in the 95th episode of Mann Ki Baat program on All India Radio, Mr. Modi said that the G20 has a partnership comprising 2/3 of the world's population, 3/4 of the world trade and 85% of the world GDP. He exuded pride that India is going to preside over such a big and powerful group from the 1st of December, and it becomes even more special as India was awarded this responsibility during Amrit Kal. He said India has solutions to challenges in every sphere, be it peace or unity, sensitivity towards environment or sustainable development. He added that the theme India has given, One Earth, One Family, One Future, shows the country's commitment to Vasudhaiva Kutumbakam. The Prime Minister expressed happiness that the export of musical instruments from India has increased 3.5 times in the last 8 years. The biggest buyers of Indian musical instruments are developed countries like US, Germany, France, Japan and the UK. Mr. Modi termed it fortunate that India has such a rich heritage of music, dance and art. और अब हमारे साथ हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली से श्री RS दहिया। नमस्कार, आपका क्या सवाल है, पूछिए। मैम नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? मेरा धीरेन्द्र जी से क्वेश्चन है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है is on the rock bottom of ranking and index is all time high. Earlier it used to be
in top 3 ranking, both Axis Blue Chip and Axis Focus 25 funds. What has gone wrong with the management, fund managers, and is there any hope of revival? I'm hopeful, but I don't know how long will it take. It has definitely gone down on the on relative performance compared to other funds, and even on a relatively longer period, it is looking disappointing. But looking at the portfolio, it's quite inspiring that it has stuck to what it has been doing all these years, a very high quality but a relatively expensive portfolio. And there is expression being used for such companies, buy at any price, and maybe that has not proved that's not proving to be favorable of late. But I think it's a matter of time, because some of its top positions they haven't gone up, and it's making some modest changes in its portfolio. But I think it has come in very handy when you look at the long-term performance of this fund. It really stands out, and this has stood the test of time. So let's see what happens, but I'm very hopeful, because there is nothing questionable visible in the portfolio as of now. Joining us now from Mumbai is Kamal. We welcome you, Kamal. कमल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मुंबई से हमारे श्रोता कमल हमारे साथ हैं. क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, कमल? I don't think so, no, we can. But from Mumbai itself, we are joined in by Jitendra. Now, Jitendra, can you hear us? हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमको 3 फंड में कोई चूज करना पड़े, मल्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो कौन सा चूज करना चाहिए, पहला? और दूसरा सर, ये एक्सपेंसेस रेशियो क्यों घटता और क्यों बढ़ता है? जैसे आदित्य बिरला में मेरा 2 पोर्टफोलियो है, तो एक में 10 पैसा बढ़ गया, एक में 10 पैसा कम हो गया है. तो इसका कम बेसी होने का क्या रीजन है? पहले आपका पहला सवाल काफी इम्पोर्टेंट सवाल है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए. अगर आप एक लो मेंटेनेंस पोर्टफोलियो चाहते हैं तो आपको एक मल्टी कैप फंड में पैसा लगाना चाहिए, या फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये फंड हर जगह पैसा लगाएगा, लार्ज मिड स्मॉल हर जगह, और ऑपर्चुनिस्टिकली कहीं पे टिल्ट भी कर सकता है. और किसी भी नए निवेशक को जिसको 1-2 साल 3 साल के बाजार के उतार चढ़ाव का एक्सपीरियंस नहीं, उसे स्मॉल कैप में नहीं लगा, क्योंकि इसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है, लेकिन गिरावट भी बहुत भारी होती है, और वो जो गिरावट का जो दौर होता है उसमें किसी नए निवेशक के लिए बने रह पाना मुश्किल होता है. मिड कैप फंड उससे रिलेटिवली कम वॉलेटाइल है, लेकिन उसका भी ब्रॉडली कैरेक्टर है. तो अपनी सुविधा और एक्सपीरियंस के हिसाब से आप फंड का चुनाव करें. दूसरा कि एक्सपेंस बढ़ता घटता क्यों है? एक्सपेंस बढ़ने घटने का प्रमुख कारण डायरेक्ट प्लान में ये है कि अगर रेगुलर प्लान में कमीशन बढ़ जाए तो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंसेस कम हो जाता है. इसका कारण ये है कि जो सेबी का जो एक्सपेंस के जो नियम है वो ये कहते हैं कि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस वही होगा जो रेगुलर प्लान में से कमीशन को घटा के जो एक्सपेंस बनता है. डायरेक्ट प्लान के लिए एक्सपेंस का कोई अलग नियम नहीं है, वो पूरी तरह निर्भर करता है रेगुलर प्लान के एक्सपेंस स्ट्रक्चर पे और जितना कमीशन दिया जाता है. तो इस वजह से अगर रेगुलर प्लान में ज्यादा कमीशन मिल रहा है तो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस कम होगा. अगर ज्यादा दिया जाएगा तो एक्सपेंस रेशियो कम होगा. अगर कम दिया जाएगा तो एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा. अगले कॉलर भी मुंबई से ही हैं, केशव जी, आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में. सवाल पूछिए. गुड इवनिंग सर. मैम गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. मेरे बेटे के नाम पे सुकन्या समृद्धि की ये जो योजना है, मैं ये चालू करना चाहता था. मैं सोच रहा हूँ कि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ बच्ची के नाम पे. SBI का मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान कैसा रहेगा? और मेरा दूसरा एक सवाल है कि ऑलरेडी मेरी एक SIP है कैनरा रोबेको में पर मंथ 5,000 रुपीज. तो और एक 5,000 रुपीज का मैं नई SIP शुरू करना चाहता हूँ उसमें कैनरा रोबेको में. तो मुझे 2 म्यूचुअल फंड बताइएगा प्लीज. थैंक यू. सुकन्या समृद्धि योजना की तुलना में मुझे उम्मीद है कि अगर आप 15 साल या 18 साल की अवधि में आप
सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाएंगे, तो उसकी तुलना में अगर SBI के चिल्ड्रन फंड में पैसा लगाएंगे तो खासा ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अंतर ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न फिक्स्ड इनकम की तुलना में मिलता है, लेकिन ये फिक्स्ड इनकम और गारंटेड है, लेकिन इक्विटी में मुझे उम्मीद है कि इतनी लंबी अवधि में धीरे धीरे पैसा लगाया हुआ सब्सटैंशियली ज्यादा रिटर्न आपको दे सकता है, और इस फंड में दिया भी है। और इस फंड से मुझे बड़ी उम्मीद है, और इस फंड में मुझे एक अच्छा चीज ये लग रहा है कि ये कारगर साबित होगा, क्योंकि ये एक फंड है जिसमें बच्चों के नाम पैसा लगाया जाता है। इस छोटे फंड या मिड साइज फंड होते हैं, जब अच्छा करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा आता है, जिस वजह से उस फंड को उसी तरीके से चलाना मुश्किल हो जाता है जैसे पहले चलाया जा रहा था। तो उसका खतरा इस फंड में थोड़ा कम है, जिस वजह से मेरी भी आपको सलाह होगी कि अगर आप डिसिप्लिन तरीके से पैसे लगा सकते हैं और इस उतार चढ़ाव को बीच में ना देखें तो जरूर इसमें पैसा लगाना चाहिए। धीरेन्द्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेंसेक्स रिकॉर्ड हाइस पर है, सेंसेक्स निफ्टी, तो ऐसे में आप जो म्यूचुअल फंड के हमारे निवेशक हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्या आपकी सुझाव होगा ब्रॉडली मेरा ये बाजार के रुख से आप अपना टैक्टिक नहीं बदलें, आप अपना स्ट्रैटेजी नहीं बदलें, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले एक साल में ही जिस तरह का बाजार का रुख रहा है, अचानक अपने सब्सटैंशियल लो पॉइंट पे भी पहुंच जाता है और अभी देखते देखते ये रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है। तो बाजार के रिकॉर्ड हाई या रिकॉर्ड लो के आधार पे आपका प्लान नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरी सलाह होगी कि एक आपका कोई रीबैलेंसिंग प्लान होना चाहिए कि आपका पैसा आधा पैसा इक्विटी में और डेट में लगा रहेगा, या 1/3 पैसा आपका डेट में रहेगा, 2/3 पैसा आपका इक्विटी में रहेगा। और ये जब 2/3 पैसा आपका इक्विटी में लगा रहेगा, वो अगर बढ़ करके 75% हो जाए या 80% हो जाए, क्योंकि बाजार बहुत बढ़ गया है, तब थोड़ा पैसा जरूर अपना कम कर दें। इससे आप एक नीजर तरीके से आप रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस बाजार को गेस कर पाना बड़ा मुश्किल है, और ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये बाजार अभी नई ऊंचाई नहीं अचीव करेगा और या अचानक बाजार में गिरावट आएगी, ये गेस कर पाना बड़ा मुश्किल है। और बाजार के आधार पे आपको अपना स्ट्रैटेजी नहीं बनाना चाहिए। Okay, joining us now from Gwalior is Mohan. We welcome you, Mohan. Please ask your question. मार्केट मंत्रा टीम तथा धीरेन्द्र सर को नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र सर से मेरा सवाल है, सर एक आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए फॉर लार्ज कैप इज टू मिड कैप इज टू फॉर स्मॉल कैप फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कंसिडरिंग LTCG? धन्यवाद सर। 70%, 20%, 10%, ये बाजार का जो कैपिटलाइजेशन का ब्रेकअप है वो ऐसा है, और अगर आप बाजार का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन अपने रिस्क लेने की क्षमता के आधार पे, बाजार की समझ के आधार पे, या बाजार के उतार चढ़ाव को विथस्टैंड पे या एक्सपीरियंस के आधार पे आप स्मॉल कैप बढ़ाएं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा। और दूसरा कि ये अगर आप जो भी एलोकेशन आप बना लेंगे, जरूरी ये है कि अगर आप 50% भी लार्ज कैप में लगाते हैं, 30% आप मिड कैप में लगाते हैं, 20% आप स्मॉल कैप में लगाते हैं, आप नियमित रूप से कम से कम सालाना एक बार आप इसको रीबैलेंस नहीं करेंगे तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। या फिर स्मॉल कैप धीरे धीरे बहुत बढ़ जाएगा, या कोई बाजार का एक खास भाग जब बढ़ रहा होगा तो आप इस उतार चढ़ाव को ही केवल आप राइड करेंगे और इवेंचुअली ये सब इवन आउट हो जाएगा। तो एक कोई एलोकेशन बनाइए और सालाना कम से कम एक बार रीबैलेंस कीजिए अगर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका हो आपके एलोकेशन में। Okay. Dhirendra, equity is still the primary asset class for the retail investors. How important it is to have the debt mutual fund schemes also in the portfolio? Very important for two reasons. One is that the money that you need in 2-3 years must be in debt only. It should not be invested in equity. Otherwise, you will be in for a very disappointing surprise at the wrong time. Because if your 2-3 years money is lying in fixed income, is in equity,
And when you need the money, the equity market is in the dumps, it will not work out, or it will be extremely disappointing and you'll never invest in equity. So for this reason, you should have some equity. The other reason why you should have equity, even, 20%, 30%, or half of your money, depending on your, risk tolerance. If you get very upset with, big upswings in the equity market, then you must invest in equity, but not substantially. Also, to benefit from the big swings in the equity market, a rebalancing helps in a very methodical way. So even if, assuming that you have 25% into fixed income, this fixed income allocation definitely provides greater stability to your portfolio, which is very important. Because in good times, we forget about the stability. And in bad times, that is all that we are looking for. So for stability of your portfolio, you should have allocation to fixed income. And periodic rebalancing is necessary to benefit from the madness of the market. और फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या एक अच्छा विकल्प है अभी की सिचुएशन में? इससे पहले कि आप हमें इस बारे में बताएं, हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। कोलकाता से शिव शंकर है हमारे साथ। नमस्कार, सवाल पूछिए। शायद उनसे हमारा संपर्क अभी टूट गया। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में आपसे पूछ रहे थे कि अभी की जो सिचुएशन है, क्या फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनमें वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो डेट और इक्विटी में कैसे प्रोपोर्शनेटली वहां पे इन्वेस्ट करें, वो अच्छा विकल्प रहेंगे अभी? नहीं, जो फ्लेक्सी कैप फंड जिस तरह से डिफाइन किया गया है, वो फंड फ्लेक्सी कैप फंड इक्विटी और डेट में नहीं लगाते हैं, वो पूरा पैसा इक्विटी में लगाते हैं। और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में अपनी इच्छा अनुसार या अपॉर्चुनिटी अनुसार पैसा लगाएंगे। अब जिस फंड की आप व्याख्या कर रही हैं, वो है बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड, जिसमें कि इक्विटी और डेट या बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एलोकेशन फंड, जिसमें फंड मैनेजर स्थिति के अनुसार इक्विटी और डेट में पैसा लगाता है। और मैं इन डायनेमिक एलोकेशन फंड के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर फंड मैनेजर इसको बहुत इफेक्टिव तरीके से नहीं चला पाते हैं। उचित समय पे इक्विटी और डेट में पैसा लगा पाना या अधिक पैसा लगा पाना या नहीं लगाना, इसमें वो सक्षम नहीं रहे हैं। लेकिन मैं इस बात मुझे लगता है कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड इनमें जरूर लगाना चाहिए, ताकि अगर ये जो रीबैलेंस का काम है, अगर आप ये खुद नहीं कर पाते हैं, तो ये एक ऐसा फंड है जिसमें कि एक खास एलोकेशन निर्धारित होता है, और उस एलोकेशन को बनाए रखने की वजह से निवेशकों को कई बार इक्विटी से ज्यादा बेहतर रिटर्न भी मिल पाता है। और इन फंड्स में स्टेबिलिटी इक्विटी ऑल इक्विटी फंड की तुलना में ज्यादा है। जी। Ravi from Delhi joins us now. Ravi, we welcome you. Ravi, can you hear us? Ravi, क्या आप हमें सुन सकते हैं? No. Dhiren, we are approaching now the fourth quarter pretty soon, in a few days. And this is the time that a lot of spending also goes on because of the festivities, but at the same time, at the back of everyone's mind is how to go about saving, so that when you have to file your returns, etc., you should have enough savings with you so that you could buy the instruments. So what would your suggestion be to our listeners? How should they go about balancing this aspect of their income? Yeah, we are actually approaching a tax saving season, the last quarter of the year, which is, January to March. That is when people hurry up, rush to make their tax saving investment. Yeah. Tax saving investment is the framework in this country, in India, is very straightforward. You can invest up to 1.5 lakh rupees to save taxes. And that investment, if it is made, so tax save is money earned. So if you are in making investment, but you can take that advantage. I would suggest that make your tax saving investment first, and then go after your regular savings and investment. The second thing is that, if you don't have your National Pension System account, NPS account,
it is also a good time because there's a 50,000 rupees investment that can be made, which can be deducted from your income for calculating taxes. So that is very advantageous. So in all, you can invest up to 2 lakh rupees, and that will be deducted from your income for calculating taxes, and that is a huge benefit. And if you haven't done that, better to start now. Spread it over the next 4 months. To think beyond tax saving. Think of it as a long-term investment on which you also get the tax break. Okay. Moving on, the government has invited ideas and suggestions from people for the Union Budget 2023-24 to foster the spirit of Jan Bhagidari. The Finance Ministry invites suggestions from citizens every year to make the budget-making process participative and inclusive. It urged people to share their ideas and suggestions that can help transform India into a global economic powerhouse with inclusive growth. The last date for submissions is 10th of December. गुरुग्राम से एसटी खन्ना है हमारे अगले कॉलर. बहुत बहुत स्वागत. सवाल पूछिए. मेरा सवाल ये है कि जैसे म्यूचुअल फंड का एक सेंट्रल फंड है, इसी तरीके से जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हम करते हैं उसका भी कोई सेंट्रल है जिससे में हम एक सेंट्रल से सारे बैंकों का सॉवरेन गोल्ड जो हमने लगाया हुआ है वो एक जगह से मिल जाए हमें पैन नंबर डालते ही? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन डीमैट अकाउंट के जरिए अगर आपने अपने अगर डीमैट अकाउंट में अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया है, तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो जब भी आपके डीमैट अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो आपको ये स्टेटमेंट उपलब्ध कराया जाता है हर महीने, और यहाँ से उपलब्ध है. और भारत में 2 ही डिपॉजिटरी हैं, CDSL और NSDL. और अगर आपके पास ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि आपने अगर डीमैट अकाउंट के जरिए खरीदा है तो उस अकाउंट स्टेटमेंट में ये भी दर्शाता है और ये हमेशा रिफ्लेक्ट होता है. और अब कृषि क्षेत्र से एक उत्साहजनक खबर है, वो ले लेते हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में रबी फसलों के बुवाई क्षेत्र में पिछले वर्ष के मुकाबले 24 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि गेहूं की बुवाई में ही पिछले वर्ष के मुकाबले 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ोतरी हुई और ये पिछले 4 वर्ष में सबसे अधिक है. रबी फसलों की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री तोमर ने मिट्टी में नमी की अच्छी स्थिति, बेहतर जल संग्रहण और देश भर में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता के कारण आने वाले दिनों में रबी फसलों की अच्छी पैदावार की आशा व्यक्त की. इस महीने की 25 तारीख तक करीब 359 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई हुई, जबकि पिछले वर्ष ये क्षेत्र लगभग 334 लाख हेक्टेयर था. अभी जो फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन को लेकर एक चर्चा है, उसको देखते हुए बहुत अच्छी खबर है देश की इकोनॉमी के लिए. धीरेन्द्र जी. जी हाँ, ये बहुत ही इंस्पायरिंग खबर है, और खासकर ऐसी स्थिति में जब और ये हमारे रूरल इकोनॉमी में और वहाँ से कंजम्पशन के बारे में भी काफी दर्शाता है कि हमारे यहाँ जो एक तो भारत की इकोनॉमी एक आइसोलेटेड इकोनॉमी है जहाँ पे हम ग्रोथ देख रहे हैं जी. और ये इस जो अभी आपने खबर बताई, इससे ये लगता है कि हमारा ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड है. ओके. Joining us now from Mumbai is Om Prabhu. We welcome you. Please ask your question. Okay, I'm calling from Mumbai. This is Dr. Om Prabhuji. I'm not getting your line on 100.1 megahertz. Oh, so unfortunate. You can hear us on the website also, or through our app as well. Please excuse me, I'm not able to connect. I'm using a feature phone back. I've thrown my smartphone out. So since the last 1-2 weeks, you have made certain changes with just 5 minutes news. So please can you rectify this on 100.1? जी, हम उचित मंच तक आपकी जो बात है वो जरूर पहुंचा देंगे. आप क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे धीरेन्द्र जी से? I think we've lost touch with him. Moving on, Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that Bengaluru will host a meeting of G20 finance ministers and central bank governors in February next year during India's tenure as the president of the G20 grouping. The minister was speaking at the Varananam Startup Inclusivity Summit in Bengaluru yesterday. Ms.
Sitharaman has asked the startups to utilize this event to showcase their profile to the visiting international guests. The Finance Minister said different cities in India have been selected to host G20 related meetings next year. उधर बाजार में मजबूत धारणा दर्शाते हुए विदेशी संस्थागत निवेशकों ने नवंबर में अब तक लगभग 32,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये निवेश सकारात्मक आर्थिक रुख के बीच आया। सेंसेक्स और निफ्टी 25 नवंबर को लगातार दूसरे सत्र ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए। डिपॉजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1 से 25 नवंबर के दौरान 31,630 करोड़ रुपए की शुद्ध राशि का निवेश किया। क्या कहेंगे धीरेन्द्र जी, एफपीआईज अब आपको लगता है कि फॉर्मली वापस लौट आए हैं भारतीय बाजार में? क्या रुख देखते हैं आप आगे? जी हाँ, 2 महीने पहले तक जो स्थिति बनी हुई थी कि विदेशी निवेशकों का लगातार पैसा निकल रहा था, उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। लगातार पैसा आ रहा है, चाहे उसकी रकम बढ़ जाए या कम हो जाए, लेकिन नेट इनफ्लोज है। और ये शायद ये चीज दर्शाता है कि दुनिया भर में भारत एक ऐसा इकोनॉमी इमर्ज हुआ है जहां पे अभी भी ग्रोथ देखा जा रहा है और बाकी सब जगह निवेश के बारे में अभी भी काफी चिंताएं हैं। दिल्ली से जेएस सलूजा हमारे अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग टू द एंटायर टीम मार्केट मंत्रा। जी गुड इवनिंग। My question to Dhirendra sir is that if I don't want to, once the sovereign gold bond is matured, so can I, not redeem and extend it further? So can it be done for another 1 to 3 years, or it has to be for 8 years? And if it can be done, what is the procedure? Thank you. No, it cannot. I haven't come across a provision where the sovereign gold bond can be extended, but the sovereign gold bond issuance happens every 3 months. So on expiry of 3 years, and it's good to actually take your money, because the advantage of taking your money after 8 years, if you were an original investor, is that all the gains that you realized is tax free, or is not taxable, and you get your money, and then you will get an opportunity in a month or 2 at most, because these issuances are happening every quarter. धीरेन्द्र जी, अगर हम अमेरिका की टेक कंपनीज में देखें तो फैंग कंपनीज जिन्हें कहा जाता है, उनमें खासी गिरावट आई है। आपको लगता है कि अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए? क्या कोई ऐसा एमएफ है जिसके द्वारा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि एक खासी अपॉर्चुनिटी है, और ये पहली बार ऐसा देखा। और ये जो बड़ी कंपनियां हैं वहां पे 30%, 40%, 35% की गिरावट देखी गई है। और पिछली बार जब ऐसा हुआ था वो 2008 के बाद हुआ था। वो दोनों 2008 की गिरावट की स्थिति में और आज की स्थिति में बड़ा अंतर है। एक तो 2008 में बहुत सारी कंपनियां अभी भी उस समय जूझ रही थी कि मुनाफा बनाएंगी कि नहीं। आज ये निर्धारित हो गया है, ये साबित हो गया है कि ये काफी पैसा बनाती है। ये कंपनियां जिसमें कि एक डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और शायद बहुत लंबे समय तक ये मौका नहीं रहे। और अगर हो सकता है कि यहाँ से और भी गिरावट हो, तो मुझे लगता है कि ये ऐसी कंपनियां हैं जिसमें सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, इनको लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। ग्लोबल कंपनियां हैं, और भारत में इसको धीरे धीरे पैसा लगाने का इन कंपनियों में साधन उपलब्ध है। बहुत सारे विदेशी फंड उपलब्ध हैं, बहुत सारे नेशनल फंड उपलब्ध है, और इनमें अभी फिलहाल पैसा लेना की शुरुआत भी हुई है। जी, आपने धीरेन्द्र जी आज हमारे श्रोताओं को म्यूचुअल फंड से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। आप शामिल हुए कार्यक्रम में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धीरेन्द्र फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन। Prime Minister Narendra Modi says India's G20 presidency is a big opportunity to focus on global good and welfare of the world. Wheat sowing under Rabi crop area coverage rises by over 14 lakh hectares this year. And foreign investors pump in nearly 32,000 crore rupees in Indian equities so far this month. And that's all we have in this edition of Market Mantra. Till we meet you tomorrow. Market Mantra.